Praise the Lord. सभी को जय मसीह की. Praise the Lord. जय मसीह की. முதலாவது எல்லாருக்கும் எங்களுடைய புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துதலையும் ஆசீர்வாதங்களையும் நாங்கள் கூறிக்கொள்கிறோம். सबसे पहले मैं आप सबको नया साल का शुभकामनाएं मेरे परिवार कलीसिया के Happy New Year wishes and blessing to all of you people. और सभी को नया साल का मुबारक हो. खुदा आप सबको आशीष करे. Somebody is watching online from outside of the country or inside of the country, we wish you a happy new year and God bless you wherever you are. और जो ऑनलाइन भी देख रहे हैं उनके लिए भी हम नया साल का शुभकामनाएं देते हैं. खुदा आपको आशीष करे. இந்த புது வருட ஆராதனைக்கு வந்திருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரோடும் ஆண்டவர் இயேசு இன்றைக்கு வித்தியாசமான முறையில் அவர் இன்னைக்கு பேச போகிறார். आज की इस सुबह आज की सभा में परमेश्वर उसके वचन के द्वारा एक अलग रीति से आप सबके साथ बात करेगा. இந்த செய்தி உங்களுக்கு ஒரு வித்தியாசமாக கர்த்தர் கொண்டு வர போகிறார். और ये जो वचन आप तक आने वाला एक अलग रीति से आपको प्रभु की ओर लेके जाएगा. 2025வது வருஷம் முடிஞ்சு 2026வது வருஷத்தில் முதல் நாளில் வந்திருக்கிற உங்களை கர்த்தர் வித்தியாச விதமான முகத்திலே உங்களை பார்க்க போகிறார். 2025 खत्म करके 2026 का आज पहला दिन है और मेरा विश्वास है परमेश्वर एक अलग रीति से आपको चलाने वाला है. हालेलुया हालेलुया. விசுவாசிக்கிறவங்க அதிக ஜெபத்தோடு காத்திருங்கள். और जो विश्वास रखते हैं प्रार्थना के आह्वान में आप खड़े बने रहना. ஆண்டவர் நமக்கு தந்த அந்த வாக்குத்தத்த வசனத்தை நாம் வாசித்து நாம் இப்பொழுது செய்திக்கு நேராக கடந்து செல்ல போகிறோம். और परमेश्वर ने हमारे लिए 2026 के लिए जो वायदा का वचन दिया है वो पढ़ के हम लोग वचन में आगे बढ़ेंगे. ஒரு நிமிடம் கண்களை மூடி ஜெபித்து வசனத்தை வாசிப்போம். क्यों हम सब हमारे आंखें बंद करेंगे, वचन को हम पढ़ेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे. பரலோக பிதாவே, हे मेरे स्वर्गीय पिता, இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं. வார்த்தைகள் உம்முடையது. परमेश्वर वचन शब्द तेरा है. பேசுகிறவர்கள் நாங்கள் மனுஷர்கள். और हम बात करने वाले केवल हम मनुष्य हैं. ஆனால் இந்த செய்தியை கொண்டு செல்லுகிறவர் பரிசுத்த ஆவியானவர். लेकिन पवित्र आत्मा इस वचन को अगुवाई करने वाला है. இதை பார்க்கிறவர்கள் और जो इसे देख रहे இதை हैं, கேட்கிறவர்கள், जो इसे सुन रहे हैं, இந்த வசனத்தை மறுபடியும் கேட்கிறவர்கள், और ये वचन को दोबारा फिर से जो सुनते हैं, இந்த வருஷத்தில் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்களாக. और इस साल सभी लोग आशीष पाए. ஒவ்வொருவரோடு கூட பேசும். हर एक के साथ तू बात करना. இயேசுவின் மூலம் ஜெபிக்கிறோம் பிதாவே. यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं करके सुन पिता. ஆமென். आमेन. கொடுக்கப்பட்ட வசனம் और हमें दिया गया जो वचन है, ஏசாயா தீர்க்கதரிசியினுடைய புத்தகம் 35வது அதிகாரம் 1வது வசனம். और यशायाह का किताब 35वां अध्याय और उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे. வனாந்தரம் வறண்ட நிலமும் जंगल ओके पढ़िए जंगल और निर्जल देश फूलित होगा, प्रफुल्लित होगा. मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेगी. வனாந்தரம் வறண்ட நிலமும் மகிழ்ந்து கடுவழி கழித்து पुष्पத்தை போல் செழிக்கும். और उसका दूसरा भाषांतर मैं इस तरह से पढ़ता हूँ. जंगल और बंजर जमीन उनके लिए खुश होगे और रेगिस्तान खुश होकर गुलाब की तरह खिल उठेगा. Hallelujah. Hallelujah. There are 3 places mentioned in this word of God. और इस पहला वचन में 3 बातें परमेश्वर आज हमें सिखा रहा है. Number 1 is wilderness. और पहला जो बात है वो है जंगल. Number 2 is a solitary place. और दूसरा जो है बंजर जमीन. Number 3 is a desert. और तीसरा जो है रेगिस्तान है. I don't know which type of situation or which type of places you are right now or you came from. और इस सुबह मुझे मालूम नहीं है इन 3 बातों में आप किस परिस्थिति से आप गुजरे, ये मुझे मालूम नहीं है. ஆனால் இந்த வருஷத்தினுடைய இந்த தொடக்க நாளில் இந்த 3 பகுதிகளையும் உங்கள் ஆண்டவர் மாற்றி அவர் மகிழ்ந்து அவர் களிகூர செய்ய போகிறார். लेकिन आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं 2026 में परमेश्वर इन तीनों बातों को बदलाव करके आपको आशीष करना चाहता है. हालेलुया. हालेलुया. अनेक பேர்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு முன்பாக உங்களுடைய வாழ்க்கை
எப்படி இருந்தது என்பது உங்களுக்கு தெரியும். और बहुत सारे लोग यहाँ पे जो बैठे हैं यीशु मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करने से पहले आप जानते थे कि आपका जिंदगी कैसा था. இயேசு கிறிஸ்து இந்த இருதயத்தில் இல்லை என்றால் இந்த இருதயம் ஒரு வனாந்தரமாக நிச்சயமாக இருந்திருக்கும். अगर यीशु मसीह हमारे जिंदगी में ना रहता था तो हमारा जिंदगी एक जंगल की तरह होता था. இயேசு கிறிஸ்து இந்த இருதயத்தில் இந்த வாழ்க்கையில இல்லாமல் இருந்தால் நம்முடைய இருதயம் ஒரு வறண்ட வழி ஆக இருந்திருக்கும். अगर यीशु मसीह हमारे जिंदगी हमारे हृदय में नहीं रहता था तो हमारा जमीन हमारा जिंदगी एक बंजर जमीन की तरह रहता था. இயேசு கிறிஸ்து நம்முடைய வாழ்க்கையில இல்லாம இருந்திருந்தால் நம்முடைய அந்த வாழ்க்கை ஒரு டெசர்ட்டாக இருந்திருக்கும். हो सकता है अगर यीशु मसीह हमारे जिंदगी में ना होते थे तो हमारा जिंदगी एक रेगिस्तान की तरह होता था. 1900 in the year of 1984 और 1980 में when I was working in Mumbai, जब मैं मुंबई में काम कर रहा था, Baba Atomic Research Center as a nuclear engineer, न्यूक्लियर इंजीनियर करके बाबा ऑटोमेटिक रिसर्च सेंटर में मैं काम कर रहा my था. 1984 year started with the singing and dancing before I accept my और Jesus यीशु Christ. मसीह को उद्धारकर्ता स्वीकार करने से पहले नाचते गाते ये मेरे जिंदगी था. You know, people who are living in Mumbai or Pune, you know very well, like a Dandiya style, there is a big party has been set up in our sector in the 31st night of December. और दांडिया के लिए आप सब जानते हैं जो मुंबई में रहते हैं जश्न मनाने के लिए बहुत सारे बातें वहाँ पे बनाया गया था चलाया गया था. I have not accepted that time that Jesus as my personal savior. और उस समय में यीशु मसीह को मेरा उद्धारकर्ता करके स्वीकार नहीं किया. My lifestyle was different. मेरा जिंदगी लाइफस्टाइल एक अलग था. Because nobody is there with me. क्योंकि कोई मेरे संग नहीं था. My mama and papa, they are in Kanyakumari. और मेरे माता और पिता कन्याकुमारी में I थे. know nobody is there to watch me. और मुझे मालूम था कोई मुझे देख नहीं I रहा was a है. central government employee. और सेंट्रल गवर्नमेंट का एक मजदूर था. I was a class 1 gazetted officer. और क्लास 1 गैजेट I ऑफिसर was था. a nuclear engineer. न्यूक्लियर इंजीनियर भी मैं था. I was living like a place like a desert. और मेरा जिंदगी एक रेगिस्तान की तरह था. You know that the whole night of 31st December we were singing and dancing in the crowd like one of my friend along with me like a Dandiya style. और दांडिया की स्टाइल की तरह 31 रात को हम नाचते गाते जश्न मना रहे थे. The new year started. नया साल शुरू हुआ था. 1984 year started. और 1984 में नया शुरुआत साल हुआ था. In my heart मेरे हृदय में there was a emptiness और मेरे हृदय में एक खालीपन था. because my family was so poor. क्योंकि मेरा परिवार बहुत गरीब It is परिस्थिति में थे full of debt. और वो लोग कर्ज में डूबे हुए थे. I had my two sisters to be married. और मेरे दोनों बहनों का शादी होना था अभी My तक. father doesn't have a job. और मेरे पिता के पास काम I नहीं was था. the only earning member. मेरे परिवार में कमाने वाला व्यक्ति सिर्फ My नहीं था. heart became empty. मेरा हृदय खाली था. My life was a desert. आमेन. रेगिस्तान की तरह मेरा My जिंदगी life था. was a wilderness. और विल्डरनेस की तरह जंगल की तरह My मेरा life जिंदगी was a था. solitary place. बंजर जमीन की तरह मेरा जिंदगी था. January 3rd or 4th, I started to write a diary. और जनवरी 3 तारीख या 4 तारीख मुझे याद नहीं है डायरी लिखना शुरू किया. I had a habit of writing a diary for not only for my work as well as my personal things. और मुझे मेरा एक हैबिट था डायरी लिखने का. मेरे काम के लिए भी नहीं लेकिन मेरा व्यक्तिगत जिंदगी के लिए भी मैं डायरी लिखता था. I written that night. और उस रात के बारे में मैंने लिखा था. I have decided myself to kill myself. और मैंने ये निर्णय लिया था कि मेरे जिंदगी को मैं खत्म कर दूंगा. My dear brother and sister, I was working as a government employee. और मैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की तरह मैं काम कर रहा था. But my life was empty. लेकिन मेरा जिंदगी खाली था. Because my life was empty. कारण मेरा जिंदगी खाली It था. was a wilderness. और रेगिस्तान की तरह Desert था. it was. और रेगिस्तान की तरह जंगल की तरह था. Nobody gave me a peace. कोई मुझे शांति नहीं दे रहा था. Money could not give me a peace. पैसा मुझे शांति नहीं दे पाया. Job could not give me a peace. काम मुझे शांति नहीं दे The पाया था. position of the job did not give me a peace. मेरा पोजीशन जो काम में था वो मुझे शांति नहीं I दे was पाया था. planning that night to end up my life, and I written in the diary, I am going to die. I am going to kill myself. Like that, I have written and I slept. और उस दिन मैंने निर्णय लिया. रात के दिन मैंने मेरे डायरी में लिखा था कि मेरा जिंदगी को मैं खत्म कर दूंगा करके.
I don't know what happened that particular night. लेकिन मुझे मालूम नहीं उस रात क्या हुआ। I was thinking that I have to kill myself. और मैं सोच रहा था मेरा जिंदगी को मैं खत्म कर दूं। I written in the diary. और डायरी में भी मैं लिखा था। As usual, I was staying in Konkan Bhavan, which is in CBD, New Bombay. न्यू बॉम्बे CPD में कोंकण भवन में मैं रहता The था। next day, दूसरा दिन I don't know what happened. मुझे मालूम नहीं क्या हुआ। As usual, और हमेशा की तरह without knowing anything, कोई कुछ बात न I took जानते my हुए bag. मेरा बैग लेते I हुए catch my BRC bus और BRC बस and I लेते started हुए to work. और मैं काम शुरुआत कर दिया। I don't know. मुझे मालूम नहीं है। I don't know. मुझे मालूम नहीं है। But previous night, लेकिन उसके पहले की रात my heart, मेरा हृदय my life was emptiness. मेरा हृदय मेरा जिंदगी में खालीपन था। But something is taken place that night. लेकिन उस रात कुछ मेरे जिंदगी में हुआ। I felt somebody came and sit in my heart. मुझे लगा उस रात कोई आया और मेरे हृदय में बैठ गया। And then the following week, और उसी हफ्ते में one of my close friend, we were roommate. और जो मेरा करीब का दोस्त जो मेरा रूममेट था, He took me to one of the prayer meeting in Anushakti Nagar. अनुशक्ति नगर में वहाँ पे चेंबूर में जहाँ पे प्रार्थना हो रहा था, उसने मुझे वहाँ लेके गया। Before that, he used to call me every day. I never hear. उससे पहले वो हमेशा मुझे बुलाता था, चलो कलीसिया जाते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं गया। I was a Christian. और मैं एक मसीह में था। I was a nominal Christian. और एक नॉमिनल I मसीह was a में था। Catholic Christian. और कैथोलिक फैमिली से But I never knew Jesus. लेकिन मुझे यीशु मसीह कौन है मुझे मालूम नहीं The था। moment I went to the Anushakti Nagar, लेकिन जिस दिन मैं अनुशक्ति नगर गया there is a tall building. और एक ऊंचाई बिल्डिंग वहाँ I don't था। know who knows about Anushakti Nagar near Chembur in Mumbai. और चेंबूर में अनुशक्ति नगर किसी को अगर पता है मुझे मालूम नहीं है। There was a nuclear engineer. He was residing 14th floor of that tower building. और उसी बिल्डिंग में 14 मंजिले पर वो इंजीनियर रहता He था। conducted in his home the cell group prayer meeting. और उसी घर में उसके घर में प्रार्थना का सभा चलता था। I go with my friend. और मैं मेरे दोस्त के साथ गया। I don't know what happened. मुझे मालूम नहीं क्या हुआ। That particular day, उस दिन something touched me. और कुछ बात ऐसे जो मेरा हृदय को स्पर्श किया। Somebody looks like that somebody is speaking to me. मुझे ऐसा लगा कोई मुझे देख के मुझसे बात कर रहा है। No, my dear नहीं brother. नहीं नहीं मेरे भाई, You think that your position, your job, and your money can save you. मुझे आप सोचते रहेंगे आपका काम आपका पैसा आपको बचा सकता है। In the prayer meeting, somebody is speaking to me like that. I am feeling. और उस प्रार्थना के सभा में कोई मुझसे बात कर रहा है डायरेक्टली, ऐसा मुझे लग रहा था। And very clearly somebody is speaking to me during the prayer meeting. और प्रार्थना के समय मुझे अच्छी तरह याद है कोई मुझसे बात कर रहा And था। I know when I was speaking to you right now, and God is speaking to somebody in the place also, which has happened 1984. और जिस तरह से उस दिन मेरे साथ हुआ मुझे मालूम है आज सुबह यहाँ पे परमेश्वर आपके साथ उस When I was speaking this testimony, जब मैं ये गवाही में दे रहा हूँ when I was sharing my testimony, और मेरा पर्सनल टेस्टिमनी में जब somebody is going to touch by Jesus today. और यीशु मसीह के द्वारा कोई किसी को आज स्पर्श होने वाला है। That day, उस दिन I decided myself. मैंने निर्णय ले लिया Now, आज I will go towards this way. और इस राहों पे मैं चलूंगा Because Jesus has spoken very clearly, I am the way, I am the truth, and I am the life. और उस दिन खुदावंद यीशु मसीह ने मुझसे बात किया कि वही मार्ग है वही सत्य है और वही जीवन है। Because few days before, devil wanted to take my life. और कुछ दिन पहले शैतान मेरी जिंदगी लेना चाहता था, But लेकिन my Jesus give me life. मेरा परमेश्वर मुझे जिंदगी दे दिया। That is why I am here right now in year 2026, and I am sharing this testimony to you, my dear brother and sister. और वही कारण है 2026 में आपके बीच में खड़ा होके मेरी गवाही मैं आपको दे रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। I don't know how many of people are in the
stage of like this. और मुझे मालूम नहीं इस परिस्थिति में कितने लोग इस ऐसे परिस्थिति में है, But I want to tell you, लेकिन आज मैं आपसे कहना चाहता there are हूँ, 3 things going to take place in this house. और of God. इस घर में, इस जगह में 3 बातें होने वाली है। Number 1, पहली बात, there will be a radical transformation. और आपके जिंदगी में एक परिवर्तन மாபெரும் होने वाला மாற்றம். है। उसका उग्र உங்க வாழ்க்கையில ஒரு மாபெரும் மாற்றத்தை இந்த புது வருஷ நாளிலே தரப்போகிறார். एक जल्दी से परिवर्तन आपके जिंदगी में होने वाला है, மாபெரும் மாற்றம் और आपका जिंदगी में परिवर्तन எதுல? किस में होने वाला है? உங்களுடைய பொருளாதாரத்துல, आपके सारी बातों में, இரண்டாவது உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில. आपके आत्मिक जीवन में There will be a great blessing for your life is going to take place from today onwards. आज से आपके जिंदगी में एक बड़ा परिवर्तन आपके जिंदगी में होने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। You are in the middle of the desert. और आप हो सकता है कि रेगिस्तान के बीच में Are you हैं। come across from the middle of the desert? और हो सकता है रेगिस्तान के बीच में आप आए हुए हैं। Hallelujah. हालेलुया। The Israel people, have been delivered from the Egypt, and they were allowed 40 years in the land of wilderness. और हम सब जानते हैं इजराइल लोगों को परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाला, लेकिन 40 साल वो लोग रेगिस्तान में ही घूम रहे थे। Hallelujah. हालेलुया। God wanted to bless them and bring them to worship for Him. और परमेश्वर का ये योजना था, वहां से मिस्र देश से निकाल कर खुदा की आराधना करने के लिए कनान देश को लेके जाना The चाहता था। place God decided to bring them, a Canaan place, which is maybe 40 days of travel. और परमेश्वर ने ये निर्णय लिया था उनको मिस्र देश से निकाल के मधु और दूध के शहर कनान देश में खुदा लेके जाने वाला था। 40 दिन का ही जर्नी था और But रास्ता they था। were all roaming 40 years in the wilderness. लेकिन वो लोग 40 साल रेगिस्तान में ही घूम रहे थे। My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, you may be coming across this type of wilderness in your life. हो सकता है इस तरह की रेगिस्तान के अनुभव में आप जा रहे हो। You may be telling, Pastor, I don't have job, I don't have money, or I don't have anything for my family. आप बोल सकते हैं, पासवान, मेरे परिवार के लिए, मेरे घर के लिए मेरे पास कुछ पैसा नहीं है। I want to tell you, my dear brother, मेरे भाई, आपसे मैं कहना चाहता हूँ, நீங்க வனாந்திரத்துல கடந்து வந்தீர்கள் अगर आप रेगिस्तान से होके गुजर के आ रहे உங்க हैं, வாழ்க்கை வந்து ஒரு வனாந்திரத்துல வந்தால், अगर आपकी जिंदगी एक रेगिस्तान में से गुजरे உங்க हैं, வாழ்க்கை ஒருவேளை வறண்டு போயிருந்தால், हो सकता है बंजीर जमीन की तरह आपका जिंदगी है, ஒருவேளை உங்க வாழ்க்கை டெசர்ட் போல हो இருந்தால், सकता है एक रेगिस्तान की तरह आपका जिंदगी है। அதுக்கு அர்த்தம் என்னவென்றால் ஆண்டவர் உங்களை பாலும் தேனும் ஓடுகிற தேசத்திற்கு ஆண்டவர் கொண்டு வந்து अगर आपको நிறுத்தியிருக்கிறார். लग रहा है कि आपका जिंदगी, आपका जो सफर जंगल से होके जा रहा है, बंजर जमीन से होके जा रहा है, या रेगिस्तान से जा रहा है, इसका मतलब यह है परमेश्वर जल्द से जल्द आपको मधु और हालेलुया। दूध की शहर में हालेलुया। लेके जाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। இந்த வருஷத்துல और इस साल में ஆண்டவர் உன்னை आपको परमेश्वर மகிழ பண்ணுவார். और महिमा की तरह वो आपको ऊंचाई पे लेके जाएगा। புஷ்பத்தை போல செழிக்க பண்ணுவார். आप गुलाब की तरह खिलने वाले हो, லெபனோனை போல செழிக்க பண்ணுவார். लेबनन की तरह आपको परमेश्वर आशीषित करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। ஷாரோனை போல செழிக்க பண்ணுவார். शारन की तरह तेज महज आप होने वाले हो, கர்மேலை போல செழிக்க பண்ணுவார். कार्मल की तरह आप शाइन होने वाले हो। நான் சொல்லல, तो मैंने बोलता हूँ, தீர்க்கதரிசி இந்த வசனத்துல உங்களுக்கு சொல்றாரு. नबी इस किताब में इस तरह से कहता அந்த है, வசனத்தை உங்களுக்கு நான் ஆசீர்வாதமா சொல்றேன். और ये वचन के द्वारा मैं आपको आशीष के द्वारा हालेलुया। हालेलुया। Isaiah chapter 43 verses 18 and 19. और यशायाह इसका 43, 18 और 19 इस तरह से कहता है, முன்னானவைகளை நினைக்க வேண்டாம், और पिछली बातों को न भूलते हुए பூர்வமானவைகளை சிந்திக்க आगे की வேண்டாம். बातों के लिए याद रखते हुए, இதோ புதிய காரியத்தை देखो செய்கிறேன். मैं आपके जिंदगी में नया कार्य करने वाला हूँ। படியே 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 படியே. पढ़ते हैं बहना। हालेलुया. हालेलुया। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो, हाँ। ना प्राचीन की बातों पर मन लगाओ। हाँ। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, हाँ। वो अभी प्रकट होगी। हाँ। क्या तुम उससे अनजान रहोगे? हाँ। मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा हालेलुया. हालेलुया। और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। हालेलुया. हालेलुया। வனாந்திரத்துல
வாளிகளை உண்டாக்குவேன். रेगिस्तान में मैं तुम्हारे लिए एक राह बनाऊंगा, ஆறுகளை உண்டாக்குவேன். राह बनाऊंगा, வனாந்தரத்தில வழிகளையும் और रेगिस्तान में एक मार्ग, जंगल में आपके लिए ஆறுகளை உண்டாக்குவேன். और नदी बहेगा, नदी का मार्ग हालेलुया, 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 हालेलुया। I will make a road in the wilderness. और रेगिस्तान में आपके लिए एक रास्ता मैं I will बनाऊंगा, make a rivers in the desert. और समुद्र आपके रेगिस्तान जंगल में मैं बनाऊंगा। Hallelujah, हालेलुया, hallelujah, हालेलुया। my dear brother and sister. मेरे प्यारे भाई और बहनों, ஒரு radical transformation ஐ கர்த்தர் இந்த வருஷத்துல एक உங்களுக்கு जल्द सा परिवर्तन आपके जिंदगी में परमेश्वर लेके आ ஒரு रहा है। பெரிய ஒரு transformation ஆண்டவர் தர एक போகிறார். बड़ा परिवर्तन आपके जिंदगी में परमेश्वर लेके आ रहा உங்க है। வாழ்க்கையில இருக்கிற வனாந்தரம் செழிக்க போகுது. आपके जिंदगी में जो जंगल है, बंजर जमीन है या रेगिस्तान है, बदलने वाला है, गुलाब की तरह आप खिलने वाले Isaiah हो। 35:2 verse 2 என்ன சொல்லுகிறது? यशायाह 35 और दूसरा वचन क्या कहता है? படியே. वो अत्यंत प्रफुल्लित होगी वो अत्यंत प्रफुल्लित होगी, और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। आनंद के साथ आप जय जयकार करने वाले हो। हालेलुया, हालेलुया। उसकी शोभा लबनोन की सी होगी उसकी आमीन। शोभा लबनोन की तरह होगी, और वो कर्मेल और शारोन के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। और वह कार्मेल और शारोन के तुल्य तेज में हो जाएगी। Hallelujah, हालेलुया, hallelujah. हालेलुया। My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, இயேசு கிறிஸ்து यीशु मसीह அவர் 40 நாள் உபவாசம் இருந்த பிறகு जब 40 दिन वो उपवास कर रहा था ஆவியானவரால் அவர் வனாந்தரத்துக்கு கொண்டு செல்லப்பட்டார். और पवित्र आत्मा उसको जंगल में लेके गए। அவர் வந்து 40 நாள் அவர் பசியோடு இருந்தபோது 40 दिन यीशु मसीह भूखे थे, பரிசுத்த ஆவியானவரால் வனாந்தரத்துக்கு கொண்டு पवित्र போகப்பட்டார். आत्मा के द्वारा परमेश्वर खुदावन बाप उसको रेगिस्तान या फिर जंगल में लेके गए। இன்னைக்கு இந்த நியூ இயர் சர்வீஸ் அட்டெண்ட் பண்ணி கொண்டிருக்கிற சில பேர்களை ஆண்டவர் வந்து வனாந்தரத்துக்குள்ள கொண்டு போவார். हालेलुया। आज इस न्यू ईयर के सर्विस में जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, 2024 में परमेश्वर आपको रेगिस्तान में लेके जाएगा। என்ன பாஸ்டர் நீங்க இப்படி சொல்லிட்டீங்களே? क्या पासवान आप ऐसे तरह बोल रहे हैं हम लोग जंगल में जाएंगे? அவ முதல் நாள்லயே வந்து இப்படி சொல்றீங்களே? पहले ही हमारा जिंदगी जंगल में रेगिस्तान में है। இயேசு கிறிஸ்து அங்கு வனாந்தரத்துக்கு ஆவியானவரால் கொண்டு போகப்பட்டார். खुशखबरी ये है कि पवित्र आत्मा खुदावन यीशु मसीह को जंगल या रेगिस्तान में लेके गया। அங்க கொண்டு வந்தபோது பிசாசானவன் அவரை சோதிப்பதற்காக வந்தான். और वहां पे जाने के बाद शैतान आके यीशु मसीह को मोह में डालने की कोशिश किया। மூணு காரியம் அங்க நடந்துச்சு. वहां पे 3 कार्य हुआ। முதல் காரியம், पहली बात, அந்த பிசாசு வந்து இயேசு கிட்ட கேக்குறான், शैतान आके यीशु मसीह से इस तरह से कहता है, ரொம்ப பசியா இருக்கிறீங்க, तू बहुत भूखा है। ஐயா நீ ரொம்ப பசியா இருக்கிறீங்க, ओ तू बहुत भूखा है। 40 நாள் 40 दिन 40 நாள் சாப்பிடல, 40 दिन तूने खाना नहीं 40 खाया, நாள் தண்ணி குடிக்கல, 40 दिन तूने पानी नहीं पिया। பக்கத்துல ஒரு கல்லு கிடக்கு, देख तेरे बाजू में एक पत्थर है। நீர் பெரியவர் தானே, तू बड़ा महान நீர் परमेश्वर அற்புதர் है। தானே, तू कार्य करने वाला நீ परमेश्वर है। அதிசயமானவர் தானே, तू अद्भुत कार्य करने वाला ஒன்று பத்தி எனக்கு परमेश्वर है। தெரியும், मुझे मालूम है तेरे बारे में। நீர் வானத்தையும் பூமியையும் படைக்கும் போது அங்க இருந்தீ, जब स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया गया था तू वहां पे था। சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன் சூரியனை சந்திரனை படைக்கும் போது அவர் பக்கத்துல जब இருந்தீரே, सर्वशक्तिमान सूर्य को निर्माण कर रहा था वहां पे तू था। மனுஷனை படைக்கும் போது நீர் இருந்தீரே, जब मनुष्य को निर्माण कर रहे थे वहां पे तू मौजूद था। கடலை கலக்கும் போது படைக்கும் போது நீர் जब அறிஞ்சிருந்தீரே, समुद्र को बनाया गया था तू वहां पे था। இந்த பூமி இந்த பத்தரை படைக்கும் போது நான் அங்க இருந்தீரே, वहां पे जब जमीन को बनाया गया था, पत्थर को बनाया गया था, वहां पे तू था। யா நீர் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க, क्यों तू इतना मुसीबत और कष्ट में யா जा रहा है? 40 நாள் உபவாசிச்சுட்டு கஷ்டப்படுறீங்க. अरे क्यों 40 दिन तू उपवास कर रहा பிசாசு है? ஆண்டவர்கிட்ட சொல்றான், ये शैतान यीशु मसीह से इस तरह பிசாசு से बात அப்பா कर रहा இயேசு கிட்ட சொல்றான், है। शैतान मेरे यीशु मसीह बाप के साथ इस तरह से बात कर रहा है। இந்த கல்லடு ये पत्थर को तू ले நீ அப்பமாகி சாப்பிடு. और रोटी बना के इसको खा ले। ஹalleluya. हालेलुया। 40 நாள் வனாந்தரத்துல அனுபவம், मैं 40 दिन रेगिस्तान का अनुभव में 40 था நாள் வனாந்தரத்துக்கு கொண்டு போய் இயேசுவை சோதிக்கிறார். और 40 दिन आना विल्डरनेस के बाद परमेश्वर शैतान उनको लेके जाके परीक्षा में डाल रहा है। பிசாசு
அங்க சொல்றான், शैतान वहां पे कहता है நீர் இந்த கல்லுகளை அப்பமாக்குவன்னு. ये जो पत्थर है इसको रोटी बना के तू खा ले। ஆண்டவர் அவருடைய வார்த்தையை எடுக்கிறாரு. वहां पे मेरा परमेश्वर वचन को निकालता है, ஏன்னா அவர்தான் வார்த்தை. क्योंकि वही वचन है। ஆதியில் வார்த்தை இருந்தது, पहले में वचन था அந்த வார்த்தை தேவனோடு இருந்தது, और वही वचन खुदा அந்த के வார்த்தை साथ தேவனாய் இருந்தது. और वही परमेश्वर था அந்த வார்த்தை கிட்ட தான் பிசாசு கேக்குறான். और वही शब्द से शैतान इस तरह से बात कर रहा है। முதல் டெஸ்ட்ல, पहला परीक्षा में ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட்ல पहला परीक्षा में இயேசு சொன்னா, यीशु मसीह कहता है மனுஷன் அப்பத்தினால மாத்திரமல்ல, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जी सकता, தேவனிடந்து புறப்படுகிற लेकिन हर ஒவ்வொரு एक वचन जो வார்த்தையினாலும் खुदा பிழைப்பான். के पास आता है उसके साथ वो जिंदा रह सकता है। ஒரு ப்ராபசி உனக்கு சொல்றேன், आज एक भविष्यवाणी आपके लिए मैं कर ஒரு रहा हूँ। ப்ராபசி தம்பி உனக்கு சொல்றேன். भाई आपके लिए भविष्यवाणी कर रहा हूँ। உன் கையில பணம் இல்ல, आपके हाथ में पैसा नहीं है, சாப்பிட பணம் இல்ல, खाने के लिए पैसा नहीं है, பிள்ளைய படிக்க வைக்க பணம் இல்ல, बच्चे को पढ़ाई के लिए आपके पास पैसा नहीं வீடு है, கட்ட பணம் இல்ல, घर बांधने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, உதவி செய்ய பணம் இல்ல, मदद करने के लिए किसी के पास மனைவி पैसा नहीं பிள்ளைகளை है, பார்க்கிறதுக்கு பணம் இல்லாம இருக்கலாம், पत्नी और बच्चों को देखने के लिए आपके पास வசதி पैसा இல்லாம नहीं है, இருக்கலாம். कुछ भी आपके पास नहीं हो, ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வார்த்தை உனக்கு இருந்தா போதும். खुदावन का वचन अगर आपके साथ இயேசுவின் है, வார்த்தை உனக்குள்ள இருந்தா जब போதும். यीशु मसीह का वचन आपके साथ நீ है, பிழைப்பாய், ओ तू ऊपर ऊंचाई நீ पे வாழுவாய், और तू बढ़ेगा, உன் பிள்ளை வாழும், आपके बच्चे உன் रहेंगे, குடும்பம் வாழும், आपके परिवार में खुशियां உன் रहेंगी, மனைவி வாழுவாய், आपकी पत्नी को आनंदित உன்னுடைய रखेगा, கணவன் வாழுவார், आपका पति आनंदित உன் रहेगा, பிள்ளைகள் பெஸ்ட் காலேஜ்ல படிப்பார்கள். आपके बच्चे बेस्ट कॉलेज में पढ़ेंगे। மனுஷன் அப்பத்தினால மாத்திரமல்ல, मनुष्य केवल रोटी के साथ ही தேவனுடைய வாயிலிருந்து புறப்படுகிற வார்த்தையினால் लेकिन பிழைப்பார். परमेश्वर का मुख से निकलने वाला हर एक शब्द से वो जिंदा रहेगा। இயேசு ஜெயித்தார், यीशु जीत लिखा है, यीशु जीता। यीशु मसीह का जीत हुआ முதல் है। டெஸ்ட்ல அப்ப இயேசு ஜெயித்தார். पहला ही परीक्षा में मेरा बाप यीशु मसीह जीत चुका है। ஹalleluya. हालेलुया। இரண்டாவது दूसरा தோற்று போன பிசாசு जो हारा हुआ शैतान அப்ப है, இயேசுவை मेरा पिता यीशु के साथ ஒரு பெரிய மலையில கொண்டு போனான். ऊंचाई पे एक पहाड़ पे लेके ஒரு जाते பெரிய हैं। மலையில கொண்டு फिर போய் ऊंचाई पे पहाड़ पे लेके जाके உலகத்தை எல்லாம் காணிச்சான். दुनिया को पूरा दिखाया, உலகத்தை எல்லாம் காணிச்சான். पूरा दुनिया को दिखाते हुए காணிச்சிட்டு और दिखाने के बाद நீர் என்ன பணிஞ்சு கொண்டா, अगर तू मेरी आराधना करता என்ன है, பணிச்சா अगर मेरी आराधना से உனக்கு எல்லாம் தானே. ये पूरा दुनिया पे तेरा अधिकार होगा। இந்த வருஷத்துல इस साल में இந்த வருஷத்துல इस साल में பிசாசு शैतान அநேக பேர்களுக்கு बहुत से लोगों के लिए நான் இதை தருவேன், मैं ये दूंगा, நான் இதை मैं தருவேன், वो दूंगा, நீ ஆண்டவர் ஜெபிக்கிறதை நீ விட்டுரு, तू प्रार्थना करना बंद कर दे, நீ பைபிள் வாசிக்கிறதை விட்டுரு, वचन पढ़ना छोड़ दे, சர்ச்சுக்கு வரதை விட்டுரு, चर्च आना बंद कर நீ दे, சந்தோஷமா குடும்பமா இருக்கிறதை விட்டுரு, तू परिवार के साथ एकत्र है उसको छोड़ दे, நான் உனக்கு சந்தோஷம் தாரேன். मैं तुझे शांति दूंगा। செல்போனை எடு, मोबाइल ले लो அங்க அந்த போன்ல வழியா நீ பேசு, और फोन में किसी के साथ तू बात பேச कर, கூடாதவர்கிட்ட பேசு, जिससे तू बात नहीं करा उससे பார்க்க तू बात கூடாதவர்கிட்ட कर। பாரு. जो नहीं देखना वो நீ सारा அப்படி बातें செய்தா देख। अगर तू इस तरह से நான் உன்னை करता है, ஆசீர்வதிப்படி பிசாசு சொல்லுவான். शैतान कहता है मैं तुझे आशीषित करूंगा। பேஸ்புக்ல இரு, फेसबुक में तू रह जा, இன்ஸ்டாகிராம்ல இரு, इंस्टाग्राम में बने रहे, ஓ என்னென்னலாம் உண்டோ அதுல இரு, வாட்ஸ்அப்ல जो இரு, कुछ करना चाहता कर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। சோஷியல் மீடியால இரு, सोशल मीडिया में तू रह நான் जा, உனக்கு சந்தோஷம் தருவேன். मैं तुझे शांति दूंगा। பிசாசு அப்படி சொல்லுவான். शैतान इस तरह से आपसे बात करेगा, ஆனா இயேசு என்ன சொன்னார் தெரியுமா? लेकिन यीशु क्या कहता है मालूम है? வசனத்தை எடுத்தாரு, और दोबारा उसने वचन वचन का निकाला अधिकारी। और उसने वचन को ले लिया। அவர் சொன்னாரு, उसने कहा நீ இதெல்லாம் தந்தா நான் உன்னை வணங்க மாட்டேன், ये सारी बातें अगर तू नी- देता है मैं नी- तेरी आराधना நீ तेरे இதெல்லாம் सामने சொன்னா मैं உன்னை வார்த்தையை கேட்க மாட்டேன். तेरा वचन को तेरे बातों को मैं सुनने वाला नहीं। தேவனாகிய கர்த்தர் ஒருவருக்கே ஆராதனை செய்து செய்வாய் என்று எழுதி இருக்கிறது என்ற ஒரு வசனத்தை और சொன்னார். वचन कहता है कि तू केवल हमेशा के लिए खुदावन परमेश्वर ईश्वर का ही आराधना करेगा। ஹalleluya. हालेलुया। அப்படி சொல்லுகிறவர்களுக்காக ஆண்டவர் நாமத்தை इस மகிமைப்படுத்துகிறார். तरह लोग बोलने वाले जो है मैं किसी के सामने झुकने वाला नहीं, अगर झुकेगा हालेलुया। केवल बापवंत खुदा के सामने ही झुकेगा। हालेलुया। अगर कोई बोलता है तालियों के साथ हालेलुया। हालेलुया। எத்தனை பேர் சொல்ல போறீங்க? कितने लोग इस तरह से बोल सकते நான் हैं? இயேசுவுக்கு நேராக வருவேன். मैं यीशु के संग चलूंगा। பிசாசே எனக்கு இந்த சிற்றின்ப வேண்டாம், शैतान मुझे ये सारी खुशियां சோஷியல் மீடியா வேண்டாம், सोशल मीडिया नहीं चाहिए, Facebook வேண்டாம், फेसबुक मुझे नहीं चाहिए, இன்ஸ்டாகிராம் வேண்டாம், इंस्टाग्राम नहीं
चाहिए, WhatsApp வேண்டாம், व्हाट्सएप नहीं चाहिए, தேவையற்ற chat வேண்டாம், जो मुझे चाट चाहिए वो नहीं தேவையற்ற चाहिए, relation வேண்டாம், नहीं चाहिए वो रिलेशन मुझे नहीं चाहिए, எனக்கு சாராயம் வேண்டாம், मुझे दारू नहीं चाहिए, எனக்கு சிகரெட் வேண்டாம், मुझे सिगरेट नहीं चाहिए, எனக்கு தம்பாக்கு வேண்டாம், मुझे तंबाकू नहीं चाहिए, இயேசு போதும். केवल मुझे यीशु चाहिए। हालेलुया। कोई है ऐसा बोलने वाले यहाँ? हालेलुया। हालेलुया। இயேசு ஜெயித்தார். यीशु का विजय हुआ। 40 நாள் வனாந்தர அனுபவத்துக்கு பிறகு 40 दिन रेगिस्तान के अनुभव के बाद ஆண்டவர் கொடுத்த வசனம், खुदा ने दिया हुआ वचन, வனாந்தரம் செழிக்கும், आमेन, आपका रेगिस्तान खिलेगा, வறண்ட நிலம் செழிக்கும், आपका जंगल खुशहाली में बदलेंगे, கடுவெளி தளிக்கும், बंजर जमीन आशीषित ஒரு पाएगा, மாபெரும் மாற்றம் உன் வாழ்க்கையில உண்டாகும். और आपके जिंदगी में एक आशीष का जिंदगी बन जाएगा। மூன்றாவதாக तीसरा बात, இயேசு கிறிஸ்துவினிட்ட தோற்று போன பிசாசு மறுபடியுமாய் வருகிறார். वापस 2 बार हारने के बाद शैतान वापस दोबारा यीशु मसीह से कहता है, அவன் சொல்றான், और वो कहता है, எருசலேம் ஆலயத்துக்கு மேல இயேசுவை கூட்டிட்டு போயிட்டு और यरूशलेम के मंदिर के ऊपर लेके जाके, மேத்யூ 4:1 லூக் 4:1 இருக்குது, மேபி हम पढ़ेंगे मत्ती का शुभ वर्तमान 4 और 1, लूक 4 और 1 में यही घटना लिखा हुआ है, हम पढ़ेंगे। படிங்க. तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया हाँ। ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। हाँ। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। हाँ। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तब इब्लिस उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर के कगोरे पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वे तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तेरे पांव में पत्थर से ठेस लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा ना कर। हालेलुया। हालेलुया। ये भी लिखा है, ये भी लिखा है, ऐसा यीशु मसीह कहता है कि ये भी लिखा है। when you know the truth, जब आपको सत्य और वचन आप when जानते हो, you know the word of God, जब आप वचन को जानते हो, if you have word of God in your heart, अगर आपके हृदय में परमेश्वर का वचन जब होता है, then when the temptation comes like this, जब मोह इस तरह से जब आता है, when the devil come and speak to you, do this, then जब शैतान आके आपसे कहता है, ये कर, तब क्या then करोगे? you will say, तब आप कहोगे, devil, शैतान, you know, तुझे मालूम है written like this in the Bible, वचन इस तरह से बाइबल में लिखा है, don't tempt me, मुझे परीक्षा मोह में मत I डाल। have Jesus in me, मेरे साथ मेरे संग I यीशु मसीह have the है, word with me, मेरे साथ वचन है, the word is set free, और वचन मुझे आजादी I देगा, know this और word, ये वचन मैं जानता the हूँ, word will set me free, और वचन मुझे आजादी देगा। I have Jesus with me, मेरे साथ यीशु मसीह the है, Jesus will set me free. यीशु मसीह मुझे आजादी देगा। आमेन। That was set me free in the year 1991. और 1991 में वचन मुझे आजादी दे दिया। Hallelujah. Hallelujah. I believe that I did not share this testimony of my marriage. और मुझे मालूम है कि मेरा शादी का गवाही मैंने नहीं दिया है। My dear brother and sister, I was a mad person about the cinema. और पिक्चर देखने में मैं पागल था। 3 times I used to see the cinemas in a day. और दिन में 3 बार पिक्चर में देखता Morning था। show, सुबह का शो, matinee show, दोपहर का शो, evening show. और शाम का भी। Hallelujah. Hallelujah. Until I accept Jesus as my personal savior. उद्धारकर्ता यीशु मसीह को स्वीकारने तक दिन में 3 बार, जैसे डैनियल प्रार्थना करता था, मैं पिक्चर देखता था। We had three friends. और मुझे 3 दोस्त लोग थे। My name is Gilbert. मेरा नाम गिलबर्ट, I am a traditional Christian. और मैं पारंपरिक क्रिस्ती मसीहा में हूँ। I have a very close, my best friend Abdul Nasser. अब्दुल नासर करके मेरे खास दोस्त था। I am talking about the things which has happened when I was getting married in Mumbai. और शादी के पहले के गवाही मैं आपको बता रहा हूँ। I have a very best friend
Abdul Nasser. अब्दुल नासर करके एक अच्छा खास दोस्त था मेरा, He is also working along with me in और BRC. बीआरसी में मेरे संग वो काम कर रहा था। I have another one best friend who is a Hindu, Mohan Raj. He was working in a Lawson and और Tobacco एक दोस्त company. मेरा था मोहन राज करके, मेरे दूसरे कंपनी में वो काम कर रहा था। You know, we three go as a team. और कहाँ भी जाना है तो हम संग तीनों लोग एकत्रित हम लोग जाते You know, थे। like Mumbai Dadas like that. हम मुंबई के दादा की We तरह, thought we are Mumbai Dadas. और मुझे लगता था कि हम लोग मुंबई के दादा लोग हैं। People used to mock me. See, this fellow is this much short because I used to put 6 inch. That time, that fashion was there. 6 inches heels. उस ज़माने I के- walked like a dada. और उस जमाने में मैं हील्स पहन के इतना ऊंचाई पे मैं बड़ा होता था। That time, the dress was a bell bottom. You know. और तभी का पैंट बेल बॉटम पैंट, आपको सब मालूम है बेल बॉटम पैंट। 1991, somebody is there that you know that the bell bottom and with the high heel. I like that because in BRC there was a building called Modular Lab. मॉडल लैब करके बेल बॉटम पैंट डाल के हील्स शूज पहन के मैं उस जगह पे जाता The था। building length was approximately 2 kilometers straight. A building. और बिल्डिंग 2 किलोमीटर की इतना लंबाई पे था। I don't know if somebody is working in the BRC or watching, somebody they knows what I am talking about that. अभी कोई ऑनलाइन जो देख रहे हैं बीआरसी के बारे में जानते हैं या फिर कोई देखा है। So the building, because it is one of the best renowned world nuclear research center. और दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर सेंटर इंडिया में हमारा जो है 2 kilometers, it is open. Somebody come in the entrance from here, even the sound will hear the next end of this. और इतना लंबाई पे था, अगर यहाँ से कोई बात कर रहा है तो अंत तक वहां तक आवाज आता था। When the Gilbert and Nasser and Mohan Raj team comes with these hills, everybody knows in the other side, oh, these people are coming. और जब ये 3 लोग चल रहे हैं तो लोग समझ रहे थे यहाँ पे 3 लोग कोई तो चल रहा है, उनकी आवाज से पहचान जाते थे। You know, if anybody come by mistake single in front of us, we will mock them and we will allow them to cry. Then only we will allow them to अगर go. चुप के अगर कोई हमारे सामने अकेला कोई आ जाता तो उनको हम लोग सता के उसको रुलाते थे, That was a habit. है ना, वही हमारा हैबिट था। Maybe I was 23, हो 24. सकता है तभी मेरा वही 23 या 24 का था मैं, That was my habit. और वही मेरा हैबिट था, Our team habit. है ना। हमारे साथ हम तीनों लोगों का यही हैबिट था। I already told several times. I used to see the cinema called Sholay. और कई बार मैंने आप सबको बताया कि I don't know, maybe 100 बहुत times बार- I might have seen that हो सकता है picture. 100 बार मैंने देखा है I शोले। can still remember the dialogue. और अभी तक मुझे वो डायलॉग का याद है। अरे वाह शाबा, अरे ओ सांबा, कितना गोली है, कितना गोली है, कितना गोली है, कितना गोली है, कितना गोली है. बोलो कितना गोली है। Hallelujah. हालेलुया। So like that mad cinema mad fellow. और इस तरह पिक्चर के लिए मैं पागल था। That time there was a cinema, I think the remake, Amitabh Bachchan, Sangar Salim Simon, और वहाँ पे एक रीमेक, एक अमिताभ बच्चन का एक मूवी which था, was remade in Hindi, Amir Akbar Anthony. और उसका एक रीमेक बनाया गया था अमर अकबर एंथोनी। People used to mock us. Yes, this Amar Akbar Anthony is और coming. लोग देख के हमको चिढ़ाते थे, देख अमर अकबर और एंथोनी आ रहे Go हैं। away from these जाओ, जाओ, people. चले जाओ, चले जाओ Don't go near to them. उनके पास मत जाना है। We all are Madrasi. और हम सब मद्रासी थे। There are some Bengali people are in that cell. They will always run away. और जो बंगाली लोग वहाँ पे हमको देख के भाग जाते थे। Bengali means West Bengal, कलकत्ता से थे, not Bangladesh. अपना बांग्लादेश से नहीं, वेस्ट West बंगाल Bengal, से। because we like to mock these West Bengal people. और इन लोगों को चिढ़ाने का हमारा बहुत हमें आनंद आता That था। was my lifestyle. और वही मेरा लाइफस्टाइल था। I was mad about cinema. और पिक्चर के लिए मैं पागल था। And लेकिन my marriage has been fixed. मेरा शादी फिक्स हो गया। My marriage was fixed. मेरा शादी फिक्स हो गया। Everything is well correct. सब अच्छी तरह जा रहा था। Because you know, I always watch the cinemas from the beginning to end. I know each and every part of the cinema, characters and everything. और मेरा ये आदत था शुरुआत से लेके अंत तक पूरा पिक्चर में देखता था, उसमें कौन नाट्य कर रहा है सब मैं जानता था। Somebody is here. God is speaking through this witness or testimony that who are watching the cinema or serial reels, so that
you will have today's some decision. और जो कोई भी यहाँ पे परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, जो पिक्चर देख रहे हैं, रील्स देखते हैं या सीरियल्स देखते हैं, आज परमेश्वर आपसे मेरे गवाही के द्वारा आपसे बात कर रहा है। In the cinema beginning, और शुरुआत में पिक्चर में then there is a family scene, और जब परिवार का सीन आता then है, there will be a duet scene, डुएट सीन आता then है, there will be a fighting scene, और फाइटिंग का सीन and then आता है, there will be a climax और scene. क्लाइमेक्स अंत का भी सीन होता My है। dear brother and sister, it is exactly happening to my life. और यही बातें, सारी बातें मेरी जिंदगी में कर रहा था। Exactly, the cinema is happening in my life. ऐसा लग रहा था कि पिक्चर ही मेरे जिंदगी में चल I रहा am है। telling you, my dear younger brothers and sisters, those who are you fond about the cinema, and this will speak to you today. और जो पिक्चर देख रहे हैं, जो युवक लोग हैं, आपसे परमेश्वर एक गवाही के द्वारा आज आपसे बात कर रहा है। In our village, हमारे गांव में the marriage completed in a very fantastic way. Everybody slept that night, and morning we all wake up. और शादी के बाद वो छोटे गांव में जब शादी के बाद सब रात को सो गए, सुबह हम लोग जैसे उठे, All my brothers and sisters and my neighbors' family, everybody was in the marriage, our house, you know, in the village house with all these decoration, everything. When everything was fine, in the morning somebody is coming to my house. और रात में डेकोरेशन शादी के लिए जश्न मना गया, सारे बातें हो गया था, लेकिन सुबह कोई मेरा घर आ रहा है। One of my auntie मेरी is जो- coming early morning around 7 or 7:30 in my house और after the next day of my marriage. और शादी के दूसरे दिन बड़ी भोर सुबह 7 या 7:30 बजे मेरी आंटी जो काकी है मेरे घर आ रही है। She was talking something. We were sleeping, you know. We have a small house, me and my newly married wife. My wife means only one wife, Pastor Ma. मैं मेरी एक ही पत्नी के बारे में बात कर रहा हूँ जो पास्टर अम्मा है। जब शादी छोटा सा हमारा खोली है, शादी होने के बाद सुबह 7:30 बजे एक ही छोटा कमरा है, वहाँ पे हमारी We were आंटी आ deep रही है। sleep. और हम लोग अच्छे गहरे नींद में थे। And this auntie was speaking to my mom. और मेरी माँ के पास आंटी बात कर रही थी। And then slowly that speaking spread to my dad. और वहाँ से ये बातचीत मेरे पिता की ओर चला Then गया। those who are sleeping, my younger sisters and his sister's husband, my younger sisters, all this talking is spreading in our house. माँ से शुरुआत हुआ, पिता सुन रहे हैं, वहाँ के बाद मेरी बहन, सभी लोग ये बात सुन रहे हैं। After some time, my mom started to cry. और कुछ समय के बाद मेरी माता रोने शुरू कर दिया। Oh, like that she was shouting. आक्रोश के साथ हो करके वो रो रही है। They have cheated my son. और वो लोगों ने मुझे, मेरे बेटे को फंसा They दिया have है। cheated my son. मेरे बेटे को वो लोगों ने फंसा दिया है। Now you know that there are cinema scenes are like this. है ना, आप जानते हैं शुरुआत बहुत सारा अच्छा होता है, लेकिन बीच में I धोना होता है। hope all might have seen the cinema. मुझे विश्वास है कि सब पिक्चर देखे हुए हैं। In the cinema, ये पिक्चर में after the marriage, शादी के बाद something happened. कुछ होता है And people will come like this, और कुछ लोग आते and हैं they say that they cheated. और वो कहते हैं कि आपके शादी में Maybe आपको cheated फंसा for गया, money, पैसे के द्वारा or आपको maybe फंसा cheated गया this guy. और लड़की के So द्वारा like आपको this फंसा गया। talking is going और on. उसी तरह ये सारे बातें हो My रहा family था। started to cry. और मेरे परिवार It is रोने लगे। happening in my marriage, the next day of my और marriage. मेरे शादी के दूसरे My दिन dear मेरे brother घर and में sister, I'm ये not सारे talking बातें हो about रहे हैं। I'm not talking about somebody else. और किसी के बारे में मैंने बात कर रहा हूँ। Then I came out from my room. और जब मेरे रूम से मैं बाहर आया, Then I stunned because the marriage house was like a funeral house. और जैसे मैं बाहर आया मुझे ऐसा लगा कि किसी का मौत हो गया। सभी लोग रो रहे थे, शांत थे। My mom just came and hugged me. मेरी माता आके मुझे गले She लगाई started to cry. और वो रोने लगी। Son, बेटा, your father-in-law cheated you. आपका ससुर हमें फंसा दिया है। Why? क्यों? I was asking myself. और मैं खुद से पूछ रहा था। I have seen so many cinemas. मैंने इतना सारे पिक्चर देखा।
All cinemas is something like the scene comes. और हर एक पिक्चर में एक सीन इस तरह से आता है। But now today I am feeling the same thing is happening real in my life. पिक्चर में ये सारे घटना होती है, मैं देख रहा था, लेकिन आज ऐसा लग रहा था सच्चाई में ये सारी बातें मेरे जिंदगी में हो रहा है। For some minutes I don't know what is happening. कुछ क्षण के लिए मुझे मालूम नहीं क्या हो रहा है। I don't know what is happening. मुझे मालूम नहीं पड़ रहा I क्या see हो रहा my है। father. मेरे पिता को मैं I देख see रहा my हूँ, mother. मेरी माता को मैं देख रहा I हूँ, see my sisters, my younger sister, younger sister, और मेरी बड़ी बहन and छोटी their बहन को भी husband मैं and देख the रहा था। children. और- Everybody started to और cry उनके- in the marriage house. और उनके परिवार को भी देख रहा हूँ मैं, सारे लोग मिलकर रो रहे हैं। I have not cried almost 4-5 years after I take this job in PRC. और बीआरसी में जब मैंने काम लिया 4-5 साल तक मैं कभी रोहा नहीं I था। only see the people cry when I walk. और जब मैं केवल ये देखता था, मैं किसी का मजाक उड़ाता हूँ, लोग रोते हैं, ये मैं When देखता था। somebody cry, I laugh. और कोई रोता है That तो was मैं हंसता my हूँ। habit. और वो मेरा हैबिट था। And my family knows. और मेरा परिवार जानता है। My mom knows. और मेरी माता जानती है। My sisters all knows. सभी मेरे बहन लोग सब जानते थे। Because after I get this job only, my family situation little improved. और एक काम मिलने के बाद मेरा घर का परिस्थिति थोड़ा बदलाव आ गया। After several years, और कुछ सालों के बाद that particular day, उस दिन I could not control myself. मैं कंट्रोल खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया मैंने। I started to loudly cry. और जोर जोर से मैं फूट फूट के रोने शुरू हो I गया। was crying like a baby. और छोटे बच्चे की तरह मैं रो रहा था। Lord, why it is happening in my life? खुदा ये क्यों मेरे जिंदगी में घट रहा Why है? it is happening in my marriage life? मेरे शादी के दिन में ये क्यों हो रहा I है? have seen lot of marriage. मैंने बहुत सारी शादी देखा हूँ। We have blessed lot of बहुत marriage. सारे शादियों को हम लोगों ने But आशीष my दी। marriage, लेकिन मेरे शादी में why like this happen? क्यों ये इस तरह से घटा? And when I started to cry, जब मैं रो रहा था, my mom and my dad, everybody, oh, my son is crying. और मेरे माता पिता, ओ मेरा बेटा रो रहा है करके वो लोग भी मिलकर मुझसे रो My रहे थे। sisters all started to cry. Anna is crying, Tami is crying. अन्ना रो रहा है, मेरा छोटा भाई रो रहा है करके वो लोग भी रो रहे। After hearing this, और सुनने के बाद, ये सुनने के बाद my wife, she came out from the room. और मेरी पत्नी रूम से बाहर आई। He just came वो जैसे बाहर आई and he just catch my both legs. और वो आके मेरी दोनों पैर को पकड़ लिया। Daddy, उसने कहा, please don't leave me. मुझे छोड़ना नहीं है, Please don't leave me. मुझे छोड़ो मत। Everybody was telling, सभी लोग बोल रहे थे, let her go from उसको the भेज home. दो, भेज दो, भेज दो। Let her go from the home. वो घर से उसको We भेज don't दो, want this. निकाल दो। We don't want this girl. ये लड़की हमें नहीं They चाहिए। cheated you. वो लोगों ने तुम्हें They फंसाया cheated, है। they cheated us. वो लोगों ने हमें Send back फंसाया। her home. उसको वापस भेज दो। And she was just holding my और वो legs. सारी बातें सुन के आके मेरी दोनों पैर पकड़ के रो रही थी। My dear brother and sister. मेरे प्यारे भाई और बहनों, Only one thing I can very boldly say today. एक ही बात बड़े धैर्य के साथ मैं बोल सकता That हूँ। particular moment before that, I at least accepted the Jesus as my savior. और तो इस घटना होने से पहले यीशु मसीह को मैं उद्धार करता करके स्वीकार किया So था। the love of Jesus was with me. यीशु मसीह When I का get married. प्यार शादी से पहले मेरे संग था। So I am looking for all my family members, मैं देख रहा हूँ मेरे सारे परिवार के लोग वहाँ पे रो रहे and हैं I'm looking my wife. और मेरी पत्नी को मेरे घुटनों में मैं देख रहा हूँ, Now पैरों you में। may be asking my question, what cheated? आप पूछते रहेंगे, अरे ऐसे क्या बात हो गई, सभी लोग रोए थे, क्या किस ऐसा- बात में आप लोगों को उन्होंने फंसाया? पास्टर जी घूम की बात कर रहे हैं, क्यों बताइए सीधा। भैया आप क्यों इतना घूम घूम के बोल रहे, सीधा बताओ ना, किस तरह से वो लोगों ने फंसाया? ये आपको कैसा चीट किया है है? ना, हाउ दे चीटेड यू? Nothing. नथिंग, कुछ नहीं। Only in the right leg. और जो राइट लेग जो है, पैर है, In the feet, और जो पैर में है, there was a little swelling which has started from 14th year of my wife. और जब वो 14 साल की थी, पैर में सुजाव शुरू हो गया था। So this
one of my auntie, somewhat they know, and they said that okay, she is a sick person. That is why they made you marry. और हमारी आंटी को किसी ने बताया कि ये जो लड़की है बीमार है क्योंकि उसका पैर सूजा हुआ है और लोगों ने आपको साथ शादी करके आपको फंसा दिया है। My dear brother and sister, मेरे प्यारे भाई और बहनों, exactly what is happened in my marriage I am sharing with you. मेरे शादी में जो घटना हुई सत्य घटना आपके सामने मैं रख रहा हूँ। I don't know in a fraction of moment of minutes of second what happened to me. उस क्षण भर में मुझे क्या हुआ मुझे मालूम नहीं है। When my wife caught my legs, जब मेरी पत्नी ने मेरी दोनों पैर को छुआ I started to cry again more. और मैं अधिक रोने लगा। Why happened, Lord? खुदा क्यों ये हो गया? But all of a sudden, लेकिन अचानक से something is hard, hit my heart. और कुछ बात ऐसे थे जो मेरे हृदय को स्पर्श कर दिया। I just wake up like cinema, like some hero comes हीरो like की this. तरह वापस उठ खड़ा रहेगा। I just stood up. और मैं खड़ा हो गया। I told all my family members, including my father and mother. और मेरे माता पिता के संग मेरे सारे परिवार के लोगों को मैंने कहा, Leave us. छोड़ दो हमें। Marriage finished. Leave us. शादी हो गया, हमें अकेला छोड़ दो। Please go. Whoever, if my sisters all come from long distance, go away right now. Leave us. और मैंने मेरे बहन लोगों से कहा बहुत लंबा सफर करके हमें अकेला छोड़ दो, आप लोग जा सकते हो। I took my wife. मेरी पत्नी को मैंने लिया। I went back to the room. मैं रूम वापस I गया। closed the room. दरवाजा बंद किया। Don't disturb us. हमें डिस्टर्ब मत करना। Now whatever happened is in between me and my wife. और जो घटना हुई है वो केवल मुझ में और मेरी पत्नी के साथ है। Climax is not over. क्लाइमेक्स खत्म नहीं हुआ अभी तक। Everybody was very curiously looking and hearing this cinema story. और ये सिनेमा स्टोरी जो चल रहा था हकीकत में चल रहा था, सब सुन रहे थे। 34 years. 34 साल हो गया। I am living with my wife. आज मेरी पत्नी के साथ मैं हूँ। हालेलुया। In a day, 3 cinema I used to see. दिन में 3 पिक्चर मैं देखता था। But I have my wife. She never seen in her life a cinema. और मेरी पत्नी जो है उनके जिंदगी में एक भी पिक्चर नहीं देखा। Anybody else is there in this कोई place है and not अभी? seen the cinema? कोई है गर्व से बोल सकते एक भी पिक्चर नहीं देखा? I thank God for my wife. मेरी पत्नी के लिए मैं धन्यवाद देता हूँ खुदा का। With that leg, और उसी पैर में we travel all over the world. दुनिया के कोने कोने में हम लोगों ने With प्रवेश that किया। swelling leg, और उस सुझाव पैर से we travel all over the world. दुनिया के कोने कोने तक हम लोगों ने घूमे। And I boldly wanted to say, और गंभीर से धैर्य से मैं बोलना if चाहता I am हूँ, today standing in this podium, अगर आज सुबह आपके सामने इस पोडियम में अगर मैं खड़ा हूँ, not because of my righteousness, मेरी धार्मिकता के द्वारा नहीं not है, because of my holiness, मेरे पवित्रता के द्वारा नहीं or है, not because of my prayer, और मेरी प्रार्थना के द्वारा or नहीं not है, because of my hard work. मेरा कठिन मुश्किलों से नहीं है, 100% purely because of my wife prayer. Whenever I go to ministry, whenever I go out, she kneel down and pray for me. आज यशस्वी जिंदगी Hallelujah. अगर मैं जी रहा हूँ केवल मेरी पत्नी के द्वारा है। कारण जहाँ भी मैं सेवा के लिए जाता हूँ मेरी पत्नी घुटने टेक कर मेरे लिए प्रार्थना करती थी। Climax is not over. क्लाइमेक्स अभी तक खत्म नहीं हुआ, रुकना है, इंटरवल भी नहीं हुआ, हो गया। You know, my father, मेरे पिता because of this situation, he already decided I have to arrange a marriage for me, new marriage. और ये सारे परिस्थिति देख के मेरे पिता ने निर्णय लिया था और एक लड़की देख के दोबारा शादी करना है। Like that, they were all doing. और ये सारे बातें ये लोग सोच के ये लोग निर्णय लेके You know, like काम शुरू in कर cinema, दिया। it is happening, you know. पिक्चर में So सब it was happening in my life also. और मेरी जिंदगी में भी ये हो रहा था। But one thing happened. लेकिन एक बात हुआ, Whoever told, get out of my wife from my home, my father, my
my mother, my sisters, everyone. और जो मेरी माता पिता बहन हमारे परिवार के लोग मेरी पत्नी को कहा कि आप घर छोड़ के चले जाओ। After my wife come into our family, जब मेरी पत्नी मेरे परिवार में आने के बाद, you know, literally from the whole heart, she allowed me to help to all my sisters and my brother and everybody. और दिल की गहराई से उन्होंने मुझे परवानगी दिया मेरे परिवार में हर एक भाई बहन को मदद करे। My sister's daughter, my sister's son, and my brother's daughter and sister's son, they are all over the world. Somebody is in Ireland, somebody is in Australia, somebody is in New Zealand, and somebody is in Gulf. All these people, my wife helped her. और मेरी पत्नी के द्वारा मेरे बहन के बच्चों के लिए सभी लोगों के लिए जो आज दुनिया में इधर उधर काम कर रहे हैं, मेरी पत्नी के द्वारा वो लोग आशीष पाए, उन्होंने मदद She किया did not take the revenge. और उसने बदला कभी नहीं ली। Now in the climax, अभी एक क्लाइमैक्स सुनो। my father was in a last in the stage of before he gone to the want to be God. और खुदा के पास जाने से पहले आखिरी समय मेरे पिता उस बिस्तर पे He was in the bedridden. और वो बिस्तर में बेडरिडन थे। Me and my wife, we went to see him. और मैं मेरी पत्नी उनको मेरे पिता को देखने के लिए गए। You know, like a cinema. और सिनेमा की तरह। Like when I was crying in the next day of my marriage. और शादी के दूसरे दिन मैं जो रो रहा था, by seeing both of us, हमको दोनों को देख के my father, मेरे पिता, I have not seen my father cry before. और मेरे पिता को कभी रोते हुए मैंने नहीं देखा। He was a hard worker. और बड़ा हार्ड वर्कर वो थे। He has done a full life to sacrifice for ourselves. जिंदगी भर वो बड़े मेहनत करते थे, कुर्बानी देते थे हमारी पढ़ाई के लिए। He started to cry वो by रोने seeing my लगा wife. और मेरी पत्नी को देखे वो रोने लगे। He was telling, put a hand like this. और उन्होंने हाथ इस तरह जोड़ के कह रहे थे, Amma, अम्मा, நீ இந்த வீட்டுக்கு வந்த பிறகுதான் आप में इस घर में परिवार में आने के बाद ही இந்த வீட்டுல வெளிச்சம். हमारे घर में उजियाला रोशनी आ गई। நாங்க இவ்வளவு சந்தோஷமா இருப்பதற்கு ஒரே காரணம் अगर हम इतना आनंदित अगर है उसका कारण एक ही है, என்ன மன்னிச்சிரேன்னு சொல்லுமா. मुझे क्षमा कर दिया करके तू बोल माँ। And he was started to cry. और वो रोने लगे। He hold her hands like this in front of my wife. और दोनों हाथ मेरी पत्नी की ओर करते हुए कह रहे थे, मुझे क्षमा कर दे। I can never forget this मैं situation. ये परिस्थिति कभी नहीं भूल सकता हूँ। I know मुझे मालूम है why God has given my wife like this. और इस तरह का पत्नी परमेश्वर मुझे क्यों दिया, मुझे मालूम है। My life was a wilderness. मेरा जो जिंदगी था जंगल में था। My life was in a desert. बंजर जमीन की तरह मेरा जिंदगी But था। God transformed our family. और हमारे परिवार को परमेश्वर ने बदलाव लेके आ गया। And today और आज we are showing a good place for the people, those who are in the wilderness. और जो लोग रेगिस्तान में है उनके लिए हम राह दिखा रहे இன்னைக்கு हैं। अनेक பேர்களை ஆண்டவருக்குள்ள நடத்துகிற படுத்துகிற பாத்திரங்களாக என்னையும் என் மனைவியும் ஆண்டவர் आज परमेश्वर मुझे और मेरी पत्नी को हजारों लोगों को परमेश्वर की ओर लेके जाने के लिए हमें उपयोगित कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। radical transformation. आमेन। एक जल्दी से परिवर्तन। அடுத்ததாக दूसरा ஒரு பெரிய ஒரு திருப்பம், restoration. और एक दूसरी बात है जो पुनर्स्थापित। ஆண்டவர் இந்த வருஷத்துல अनेक பேர்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு திருப்பத்தை தரப்போகிறார். दूसरी बात, परमेश्वर आपके जिंदगी में पुनर्स्थापित करने वाला है। புதிய திருப்பத்தை தரப்போகிறார். आत्मिक नवीकरण परमेश्वर आपके जिंदगी में करेगा। 35:7 what it says, Isaiah 35:7. यशायाह 30:35 और 7वां, मृग तृष्णा ताल बन जाएगी हाँ। और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे हाँ। और जिस स्थान में सियार बैठा करते हैं हाँ। उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। வெட்டாந்தரை தண்ணீர் தடாகமும்
आमेन। मृदंग ग्रंथ ताल बन जाएगी வறண்ட நிலம் நீரூற்றுகளும் और सूखी भूमि में सोते फूटेंगे மது சர்ப்பங்கள் தாவரித்து கிடந்த இடங்களிலே புல்லும் और जिस स्थान में शेर बैठे करते हैं குறுக்கும் நாணலும் உண்டாகும் उसमें घास और नरकट और सरकंडे होंगे। यानी कि इसका मतलब है सारी अलग अलग डिफरेंट जानवर है, यानी कि आत्मिक पुनर्स्थापित परमेश्वर आपकी जिंदगी में करने In वाला the है। book of Joel chapter 1 verse 4 योएल का किताब 1 और 4 में इस तरह से लिखा है, what it says, जो कुछ तितलियां जो खा लिए, there are different type of locusts in the life of each and every one of us. हर एक के जिंदगी में हर एक तरह से तितलियां हमारे जिंदगी में है। पढ़िए Joel chapter 1 verse 4 योएल इसका 1:4 हम पढ़ते हैं, जो कुछ गाजब नामक टिड्डी से बचा हाँ। उसे अरबे नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नामक टिड्डी से बचा उसे येलेक नामक टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नामक टिड्डी से बचा उसे हासिल नामक टिड्डी ने खा लिया है। Praise the Lord. हालेलुया। Chewing locust left, swarming locust has eaten. गजम नमक के चिड़िया से जो बचते हैं, अरबे नमक ने उसे खा लिया, Swarming locust left, the crawling locust has eaten. और अरबे नमक तितलियों से जो बचे हैं उसे एक के नमक तितलियां ने खा लिया, Crawling locust left, the consuming locust has eaten. और जो consuming locust has eaten. और जिस तितलियों को इसने जो छोड़ दिया था, दूसरे चिड़िया ने उसे खा लिया। अनेकवरुடைய வாழ்க்கையில எதை எதெல்லாமோ நீங்க இழந்து போனீங்க, और जो कुछ जिंदगी में आपने जिस परिस्थिति में आपने गवाया है, பிசாசு நம்ம வாழ்க்கையில உள்ள நன்மைகளை அப்படியே அவன் அழிச்சிட்டான், और शैतान हमारे जिंदगी में जो खुशियां है उसे पूरा खींच लिया है, ஊர்ல சொல்றது போல அப்படியே அழிச்சிட்டான், और जैसे घर में गांव में कहते हैं उसे पूरा खींच के निकल लिया है, அப்படியே அவன் விழுங்கிட்டான், और उसी तरह से उसने खा लिया उसे पूरा। நம்முடைய சந்தோஷத்தை அவன் அழிச்சிட்டான், हमारा आनंद उसने खा लिया, நம்முடைய சமாதானத்தை அவன் அழிச்சிட்டான், हमारे खुशियों को उसने खा लिया, நம்முடைய சுகத்தை அவன் அழிச்சிட்டான், हमारे शांति को उसने खा लिया, நம்முடைய பரிசுத்தத்தை அவன் அழிச்சிட்டான், हमारे पवित्रता उसने खा लिया, நம்முடைய வேத வாசிப்பு நேரத்தை அழிச்சிட்டான், हमारा वचन पढ़ने का समय को उसने खा लिया, நம்முடைய ஜெப நேரத்தை அழிச்சிட்டான், हमारा प्रार्थना का समय उसने खा लिया, ஆலயத்துக்கு வரக்கூடியதை தடுத்துட்டான், गली से आने के लिए उसने वो भी बातें खा लिया, நல்ல ஃபெலோஷிப்ல வர முடியாம அழிச்சிட்டான். हमारी अच्छी सहभागिता न हो उसके लिए भी वो उसने खा लिया। பட் இன்னைக்கு உங்களுக்கு குட் நியூஸ். लेकिन आज आपके लिए एक सुसमाचार है। Joel chapter 2 verse 25. जोएल 2:25 में हम पढ़ते हैं, 2 verse 25 2:25 में इस तरह से लिखा है, क्या पढ़ता है? जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गाजाब नामक टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। Amen. 2:25. 25 Same. I will restore to you the years that the swarming locust has और जो eaten. तितलियां ने सारे बातें आपके जो शैतान ने आपके जिंदगी में सब छीन लिया है, वचन कहता है कि दुगना परमेश्वर वापस आपको 2026 में देने वाला है। Hallelujah. 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 Whatever has been eaten, जो कुछ शैतान ने खा लिया है, God is telling you, my dear brother and sister, खुदावंद बाप आज आपसे कह रहा He है, will restore you back. वापस पुनर्स्थापित He will करेगा, return you back. वो वापस सब वो देने He वाला will है, re-establishment back. और वापस पुनर्स्थापित Everything will be given you back. सब कुछ वापस तुम्हें आपको मिलेगा। 2026 is a year of restoration. 2026 नवीकरण आपके जिंदगी में होगा, 2026 will be the year of re-establishment. और पुनर्स्थापित का साल आपके लिए रहेगा। 2026 will be a restoration. रेस्टोरेशन पुनर्स्थापित परमेश्वर आपके Hallelujah. जिंदगी में करेगा। Come on, put your hands together. तालियों के साथ खुदा को धन्यवाद देते हैं। I want to take you to book of Genesis chapter 1 verse 2. और उत्पत्ति इसका पहला अध्याय है और दूसरा वचन हम पढ़ते हैं। Amen. पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। Amen. இதுல என்ன சொல்றதுன்னா, यहाँ पे क्या लिखा है? பூமியானது ஒழுங்கின்மையும் வெறுமையுமா இருந்தது, அதன் மேல் இருள் இருந்தது, தேவ
ஆவியானவர் அவர் அந்த ஜலத்தின் மேல் அசைவாடி கொண்டிருந்தார். धरती खाली था, गहरे पानी में अंधेरा था, लेकिन परमेश्वर की आत्मा उस पानी पे मंडरा रहा था. தேவ ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருந்தார். परमेश्वर की आत्मा उस पे मंडरा रहा था. வனாந்தரமான நிலம் और आपका जिंदगी जंगल की तरह है, வெறுமையான நிலம். और बंजर जमीन की तरह आपका जिंदगी है. வானத்தையும் பூமியையும் படைத்தவர் और जो जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, பார்க்கும்போது வெறுமையா இருக்கு. और जब उसने देखा वहाँ पे खाली था, வெறுமையா இருக்கு. खाली था, ஆனா लेकिन என் ஆவியானவர் मेरा पवित्र आत्मा உலாவி उस கொண்டிருக்கிறார். पर मंडरा रही थी, உலாவி उस கொண்டிருக்கிறார். पे मंडरा रही थी. இந்த உலாவி கொண்டிருக்காருடைய அர்த்தம் என்ன தெரியுமா? इसका मतलब मंडरा रही थी, इसका मतलब क्या है? எபிரேய பாஷையில ரெண்டு அர்த்தம். हिब्रू के भाषा में इसका दो मतलब है. ஒரு அர்த்தம் पहला उसका अर्थ அந்த நிலத்தை எல்லாம் அப்படியே சாஃப்டா, அதாவது மெதுவா அந்த வளர்ச்சிக்காக அவர் உலாவி கொண்டிருந்தார். और धीरे से उस जगह पे वो मंडरा रहा था. இந்த வருஷம் इस साल में பரிசுத்த ஆவியானவர் நம்ம வாழ்க்கையில அசைவாடும் போது, जब पवित्र आत्मा हम पे जब मंडराने वाला है, பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்க வாழ்க்கையில நீங்க ஆவியானவரை விடும்போது, जब आप परवानगी पवित्र आत्मा को आपके जिंदगी में जब परवानगी देते हो, உங்க வாழ்க்கையில आपके जिंदगी में புஷ்பத்தை போல, गुलाब की तरह, கார்மேல போல, कार्मेल की तरह, லெபனோன போல लेबनोन की तरह நன்மைகளை வளர்வதற்கு, आपके जिंदगी में खुशियां प्रफुल्लित நன்மை होंगे, வளர்வதற்கு अच्छी बातें फुलफिलित சாஃப்டா होंगे. மெதுவா மெதுவா धीरे से खुदा आपके जिंदगी में कार्य करेगा. ஹalleluya हालेलुया, ஹalleluya. हालेलुया. வேகமா இல்ல, जल्दी से नहीं, மெதுவா சாஃப்டா. धीरे से पवित्र आत्मा आपके जिंदगी में कार्य करेगा. ஹalleluya. हालेलुया. இன்னையில இருந்து आज से ஆவியானவரை நீங்க அனுமதிச்சு அவரை உலாவ விடுங்க. जब पवित्र आत्मा को आपकी जिंदगी में आप परवानगी देते हो, அவரை தேற்றரவாளனாக நீங்க जब எடுத்துக்கொள்ளுங்க. उद्धार करता करके आप स्वीकार करके उसे लेते हो, அவரை கம்பட்டராக நீங்க எடுத்துக்கொள்ளுங்க. सहायता करके आप जब उसको लेते हो, உங்க வாழ்க்கையில நன்மைகளை சாஃப்டா அப்படியே ஸ்லோவா அவர் வளர आपके பண்ணுவார். जिंदगी में अच्छाई धीरे से पवित्र आत्मा, எதெல்லாம் போச்சோ जो कुछ आपकी जिंदगी में चला गया, அதெல்லாம் அவர் சாஃப்டா கொண்டு வருவாரு. और धीरे से सॉफ्टली, பக்கத்துல இருக்கிறவங்கள டச் பண்ணி சொல்லுங்க, சாஃப்டா பரிசுத்த ஆவியானவங்களை எல்லாம் தருவாரு. धीरे से पवित्र आत्मा சொல்லுங்க आपको सब देने वाला है. Come on. आपके पड़ोसी को Touch बोलना, somebody. किसी को हाथ रख के बोलना, சொல்லுங்க. पवित्र आत्मा धीरे से आपको देने वाला है. எல்லாம் திருப்பி தருவாரு. सब कुछ எல்லாம் திருப்பி वापस தருவாரு. देगा, सब कुछ वापस देगा. என்ன ஒரு அர்த்தம்? और उसका मतलब, என்ன ஒரு அர்த்தம்? उसका और एक अर्थ ये है, பூமி எல்லாம் வானத்தையும் பூமி படைச்சிட்டு, जब स्वर्ग और पृथ्वी को उसने निर्माण किया, சூரியனை படைக்கல, और सूर्य को उसने निर्माण சந்திரனை किया, படைக்கல, और चांद को उसने, வெட்டாந்தரையை படைக்கல, और तारों को उसने नहीं किया, கடலை படைக்கல, समुद्र को कुछ नहीं किया था, ஜீவராசிகள் ஒண்ணும் படைக்கல. उसने गाय भैंस या जानवर को उसने तैयार ஆனா नहीं किया. ஆவியானவர் உலாவி கொண்டிருக்கிறாரு. पवित्र आत्मा मंडरा था, ஜலத்து மேல உலாவி கொண்டிருக்கிறாரு. पानी पे मंडरा रही நீங்க थी. கேட்கலாம், आप पूछ रहे हो, இது வெறுமின்மையா இருக்கு, ये खाली जमीन இந்த है, பூமி வெறுமின்மையா இருக்கு, ये जमीन खाली है, ஒழுங்கின்மையா இருக்கு, और कुछ भी नहीं, இந்த अंधेरा है. ஆவியானவர் உலாவி கொண்டிருக்கிறாரு. पवित्र आत्मा उस पे क्यों मंडरा रही थी? உங்க வாழ்க்கையில கேட்டீங்கல்ல? आप आपके जिंदगी में पूछे रहेंगे ये प्रश्न. 2026வது வருஷம் 2026 में என்ன ஒரு அர்த்தம்? அந்த உலாவி கொண்டிருப்பதற்கு उसका मंडरा रही थी, इसका अर्थ और एक ये है, ரிலாக்ஸ், रिलैक्स, शांत. क्या बोलिए? கொஞ்சம் रिलैक्स அமைதியா இருங்க. है ना, शांत, गंभीर ஜனவரியில रहना, கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க, चुपचाप रहना. கொஞ்சம் அமைதியா இருங்க. बोला पड़ोसी से चुपचाप रहना. ஆவியானவர் உலாவி கொண்டிருப்பாரு. पवित्र आत्मा मंडरा रहा है. உங்களுக்காக அவர் உதவி செய்கிறது நீங்க பாப்பீங்க. आपके लिए वो मदद करेगा, ये आप देखेंगे. யுத்தம் உங்களுடையது அல்ல, युद्ध आपका नहीं है. இது என்னுடையது என்று ஆண்டவர் சொல்லுவார். खुदा कहता है ये युद्ध मेरा है, आप चुपचाप रहो, डरो मत, चुपचाप. நீ பேசி ஒரு காரியம் நடக்க போறது இல்ல, हालेलुया. आप बोल के कुछ होने நீ वाला சண்டை नहीं போட்டு है. உன் கம்பெனில ஒண்ணும் நடக்க போறது இல்ல, कंपनी में झगड़ा करके कुछ होने वाला नहीं நீ है. உன் வீட்டுல சண்டை போட்டு உனக்கு சொத்து திருப்பி கிடைக்க போறது
போறது இல்ல. घर में झगड़ा करके प्रॉपर्टी आपको मिलने वाला नहीं है। கோர்ட்ல கேஸ் போட்டு உனக்கு ஒண்ணும் கிடைக்க कोर्ट போறது இல்ல. में केस डालने के बाद आपको कुछ होने वाला मिलने वाला नहीं है भाई। கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ். आप चुपचाप ஆண்டவரே और कहेंगे यीशुवा, यीशु मसीह என் வாழ்க்கையில வந்து मेरे जिंदगी में आके இந்த 2026வது வருஷம் 2026 में என் வாழ்க்கையில இழந்ததெல்லாம் தாங்கப்பா. जो कुछ मैंने 2025 में गवाया वापस मुझे दे दे। और हम कहेंगे डरो मत चुपचाप। ஹalleluya. கர்த்தர் தருவார். खुदा देगा। கடைசியாக आखिर में டெசர்ட் रेगिस्तान அந்த இது இருக்குதா போட முடியுமா? ब्रदर विनु ब्रदर இது இருக்குதா? வினோ இந்த டெசர்ட் அந்த இத போடுவோம். DESERT டெசர்ட் இருந்தா அத போடுங்க. कल का क्लिप एक क्लिप एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और समथिंग PPT है ब्रदर PPT या डेजर्ट या ही इज पुटिंग। आमेन हालेलुया। और एक बात आपको बताना चाहता हूं, डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान वनांतरम आपका वयल वरंड वळी आपका जो जंगल है नडुवळी आपका विल्डरनेस जंगल a solitary place बंजर जमीन and the desert रेगिस्तान will become blossom of the rose और गुलाब की तरह खिलने वाला है। இப்போ the desert और अभी ये रेगिस्तान जो है spelling of the desert DESERT और डेजर्ट का स्पेलिंग हम जानते हैं इंग्लिश में DESERT डेजर्ट है ना, यानी कि रेगिस्तान no water पानी नहीं है, no trees है ना, पेड़ no नहीं है, plants झाड़ नहीं है, पेड़ नहीं no है, life जिंदगी नहीं है it's a desert और एक रेगिस्तान है। நம்ம வாழ்க்கை அப்படிதான் இருந்திருக்கும் हमारा जिंदगी इस तरह से ही था but राइट। I want to tell you my dear लेकिन brothers आज and के sisters, आपके लिए खुशखबरी है 2006 2026 में this desert ये जो रेगिस्तान है going to become another desert और आपके लिए वो और एक डेजर्ट बनने वाला है। DESES और एक S आ गया। अपना अंग्रेजी वाला असरा है अंग्रेजी अंग्रेजी मालूम नहीं है वो असरा नहीं, अभी उनको बताएगा मैं। आपका रेगिस्तान मिठाई में बदलने वाला है। हालेलुया। अभी समझ में आया। कोई भी whoever going to your marriage house अगर जो भी शादी में जाते खाने के बाद गुलाब जामुन मिलता है ना, देखिए, जलेबी देखिए, मिलता इधर, है, आइसक्रीम खाते हैं, उसको डेजर्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि मिठाई। आपका रेगिस्तान मिठाई में बदलने वाला है। सर एक यस उसमें डालना है। उसमें एक ही शब्द आ गया जो एस है। यस मतलब एस का मतलब मैं आपको बोलना चाहता हूँ सन ऑफ गॉड। आमेन। परमेश्वर, ईश्वर का पुत्र। यस का मतलब ईश्वर का पुत्र। सेवियर। आमेन। उद्धार करता। एक यस अगर डालेगा तो अगर एक एस आपके जिंदगी में आ गया, वो डेजर्ट बिकम आपका कड़वापन मिठाई में बदल जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। I want to prophesy and tell you, my dear sister, for this Hindi congregation, everyone who is watching here and online. और जो ऑनलाइन देख रहे हैं यहाँ पे बैठे हुए हिंदी कांग्रीगेशन में मेरे भाई और बहनों, आपके लिए मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, आपका जिंदगी रेगिस्तान से बनकर मिठासपन में आ जाएगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. हालेलुया। When you accept Jesus as a savior, जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता करके स्वीकार करते when हैं, you choose Jesus as a center place in your life, जब आपके हृदय में यीशु मसीह को जब परवानगी आप देते हो, when you allow Jesus to become a center point in your life, आपके जिंदगी में महत्वपूर्ण का व्यक्ति करके आप यीशु मसीह को जब परवानगी देते हो, the life currently you are going is a desert. हो सकता है आज आपका जिंदगी रेगिस्तान के द्वारा But when you do this one, लेकिन जब आप ये करेंगे, your life is going to become a sweetener. आपका जिंदगी डेजर्ट यानी कि मीठापन आ जाएगा, कड़वापन चला जाएगा। Wherever you go at the party, लेकिन जब भी आप पार्टी में जाते हो, the end of the party, खाने के बाद people will come and ask you, ये लोग आके आपसे पूछेंगे, you
when you finish first course, nobody will ask. जब आप much. पहला खाना जब खत्म करते हो कोई आपको पूछेगा When you नहीं। go to the second course also, nobody will ask दूसरे बार much. जब आप जाते हैं कोई आपको पूछेगा But when नहीं। you go back from the party, और जब पार्टी खत्म हो के आप घर जब जाते हो the people who invited you will ask you, did you have a dessert? और जो लोग आपको आमंत्रित किए हैं वो लोग कहेंगे मीठा आपने खाया या नहीं। I am asking you today before you go from this church. जब आज मैं ये बोल रहा हूँ जब आप यहाँ से जाने से पहले You go going from this the newer service. नया साल का सर्विस खत्म होके जैसे आप यहाँ से जाओगे Did you have a dessert? आपको मीठा मिलेगा, विश्वास है? Only one thing, if you have a Jesus in your mind. मैं उस मीठापन का बात कर रहा हूँ। यीशु चख के देखो मीठा है। With that blessing, I am closing this message. और आशीष के द्वारा ये संदेश में खत्म कर Come रहा on, हूँ। everybody can stand up, please. क्यों ना हम सब खड़े हो जाए, पड़ोसी से बोलना बीमारी चली जाएगी, चंगाई आएगी, Amen. गरीबी चली जाएगी, हमारे जिंदगी में धनवान हम बनेंगे, Amen. परेशानी चली जाएगी, आनंद होगा, दुख चला जाएगा, खुशियां मनाएंगे। Amen. बोलो आमेन। Hallelujah. रेगिस्तान चला जाएगा, मीठापन आ जाएगा, Hallelujah. पवित्र आत्मा के द्वारा। Amen. हालेलुया। கரங்களை தட்டி ஆண்டவர் நாமத்தை மகிமைப்படுத்துவோம். तालियों के साथ परमेश्वर को हम धन्यवाद देते I हैं। am going to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना I am करूंगा। going to bless every one of you in this place. सभी को हम यीशु के नाम से हम आशीष Lord, देते हैं। my people, they have come across from the wilderness. खुदावन बाप हमारे लोग रेगिस्तान They से come आए हुए across from हैं। the solitary place. बंजर जमीन के द्वारा वो लोग आए हुए They हैं came across from the desert. और डेजर्ट परमेश्वर जंगल में But से गुजर as गए we हैं। started a year 2026, लेकिन 2026 जैसे शुरुआत हुआ है the wilderness is going to become a blessing. और हमारा जो विल्डरनेस है जंगल है आशीष बनेगा। The dry land is going to become a blossom like a rose. बंजर जमीन गुलाब की तरह खिलने वाली है Lord, their desert is going to become like a sweet. और रेगिस्तान हमारा मिठासपन में बदल जाएगा। This year is going to be a blessed year for them. और ये साल हमारे लिए आशीष बन Lord, I जाएगा। bless their family back home in India, in Punjab, or in Nepal, or in Pakistan, wherever they are home. खुदावंद बाप आए हुए सारे लोगों के परिवार जो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल में है, उन सबको हम आशीषित करते हैं। Lord, this year is going to become a radical transformation in their spiritual life. और इनके आत्मिक जीवन में एक परिवर्तन होने वाला है। Lord, you are going to restore the whatever they lost in their life in the last year, this 2026, you are going to restore everything, Master. 2025 में जो कुछ वो लोग ने गवाया दुगना 2026 में आप देने वाले हैं। Lord, this year, let them have a hope that their desert life is going to become a sweet life, और Master. परमेश्वर उनको इस तरह से इनका आशा को बढ़ाना क्या कि इनका रेगिस्तान मीठापन में बदल I जाएगा। pray for every one of our brothers and sisters. आए हुए सारे भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना Those करता who are हूँ। sick, let them be healed in the name of जो Jesus. भी बीमार है उन्हें चंगाई देना। Those who are having the family issue, please, Lord, remove the family disturbance. जिसके परिवार में फैमिली इशू है परमेश्वर उन सारे बातों को निकाल देना। People, those who are not having child, let them have a children in the name of Jesus. 2026 में जो संतान के लिए प्रार्थना कर रहे खुदा उन्हें दे के तू आशीषित कर। Those who are not having a job, let them receive in this month itself, और इस Master. महीने में परमेश्वर जिसके पास काम नहीं उन्हें काम दे के आशीषित Those who कर। are not having a land, those who are not built the house, let them have a land and build the house in the name of Jesus. जिसके पास जगह नहीं है घर नहीं है इस साल में उन्हें जगह और घर दे के तू आशीषित I कर। bless every one of them a financial blessing. और सभी को मैं आर्थिक रीति से मैं आशीषित I करता release हूँ। the financial blessing in the name of Jesus. आर्थिक ब्लेसिंग्स में सभी के जिंदगी में घोषणा I करता release हूँ। the healing in the name of Jesus. चंगाई घोषणा मैं करता हूँ I release the peace in the name of Jesus. और यीशु के नाम से शांति घोषणा Let करता them हूँ go from this place as you bless everyone in the name of Jesus. और यहाँ से जब सभी जा रहे खुदा तेरे नाम से मैं आशीषित करता हूँ I ask everything in the name of Jesus. सारी बातें यीशु मसीह के नाम से In मैं मांगता हूँ matchless name of our Lord and Savior Jesus Christ. यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ करके सुन पिता Amen. Amen. Hallelujah.